بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ دعا کھانے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، موضوع ہے میرا ذکاوت حس۔ ذکاوت حس ایک بہت ہی بری مرض ہے۔ اگر اس کو بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ جن لوگوں کو ذکاوت حس کی شکایت ہے ان کو صورت انزال کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے پارٹنر کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے علاج جو ہے وہ ذکاوت حس کا کرانا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں ٹوٹکا دیا جائے، تو ٹوٹکوں سے ان امراض کا علاج نہیں ہوتا۔ آج جو میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا کہ ذکاوت حس ہے کیا، ذکاوت حس کی علامات، ذکاوت حس کے اسباب۔ ذکاوت حس اس چیز کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے جس میں جماع کی خواہش کی شدت اختیار کر جاتی ہے، بہت زیادہ جماع کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ماسٹربیشن کے عادی ہوتے ہیں، مستزنی کے، جلک کے، ہاتھوں سے اپنے مادہ کو ضائع کرنا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ مٹھ مارنا۔ اور دوسری اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کثرت شہوت۔ جو لوگ کثرت شہوت کے عادی ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی ذکاوت حس کا جو ہے مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا آدمی جس طرح کے ماسٹربیشن کرتا ہے وہ عادت کو چھوڑنا تو چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے برا فعل کیا ہے، لیکن اس کی ذکاوت حس اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور پھر وہ دوبارہ یہ فعل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ کرتا ہے اندر سے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اس کو کہ یہ میں نے کام غلط کیا ہے، لیکن ذکاوت حس کی وجہ سے وہ بار بار اس کام کو وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی اپنا آپ بیڑا غرق کر دیتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس عادت سے بری نہیں ہوتا، اس عادت سے وہ اپنا چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کی جو ہے نا وجہ خیالات متواترہ، کہ اس طرف خیالات ہی اس طرف رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ذکر ہوتا ہے یا قذیف کہہ لے یا عضو خاص کہہ لے کہ جلد اور خاص کا جو حشفہ ہوتا ہے اس کی حس جو ہے نا وہ بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور ان کے جو عصبی ریشے ہوتے ہیں، جو ریشے ہوتے ہیں نا، اس کی جو جلد ہوتی ہے اس میں ایک غیر معمولی سی حس جسے میٹھی میٹھی کھجلی خراش جس کو کہتے ہیں کہ دگا دگا، جس کو کہتے ہیں دگ دگا، یا خفیف سوزش بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تمام یعنی کہ چیز اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو خون کا دورانیہ ہوتا ہے وہ خاص طور پر عضو تناسل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور عضو میں بار بار نامکمل خیزش جس کو دگدگا یا کھجلی بھی کہتے ہیں ہوتی ہے، اور جماع کو دل کرتا ہے، یا جو ماسٹربیشن کی عادی ہوتی ہے ان کو ماسٹربیشن کی دوبارہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، جس کا اثر ابتدا پیشاب کی نالی کے اختتامی سرے پر ہوتا ہے، مگر یہ پھر بڑھتے بڑھتے تمام اعضائے تناسل عضو خاص پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ذکر یا قذیف کو کپڑے کی رگڑ سے بھی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا اس کو تھوڑا سا دبانے سے مریض اپنی بدقسمتی سے اس سے بہت زیادہ شہوت قرار دیتا ہے، یا سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ طاقتور ہوں کیونکہ مجھے شہوت بہت زیادہ آتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں وہ خوش ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ان کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ آدمی کی شادی ہوتی ہے، یا شادی ہونے کے بعد جب وہ 30 سال تک پہنچتا ہے،
अगर तो उसकी खुराक अच्छी है तो फिर तो 30 साल तक ठीक है, वरना 30 साल के बाद फिर उसको मर्दाना कमजोरी की शिकायत होना शुरू हो जाती है। वरना तो आजकल तो जो मरीज हमारे पास है वो तो 20-25 साल के दरमियान भी ऐसे मरीज हैं कि जिनको ये शिकायत होती है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ये मास्टरबेशन की होती है या मुस्तजनी जिसको कहा जाता है। असबाब इसके ये है कि ये मर्ज आमतौर पर फासद ख्यालात के हजूम या गंदी किताबों के पढ़ने से, या आजकल जो इंटरनेट है इसमें फहश तस्वीर देखने से, या ऐसी वीडियो देखने से जिससे जो ख्यालात है वो उभरते हैं, या ऐसी किताबों का मुतालिया करने से, या जुमा के तसव्वुर रखने से, जुमा के किस्से कहानियाँ सुनने, या बरहाना या उरिया या थोड़ी सी नीम बरहाना तस्वीरें देखने से, खुसूसन हालत तुजरद को हो जाता है जो बरहाना होता है। औरतों खासकर जनाना बाजारी के साथ खलवत, यानी कि बाज़ारों में औरतों और मर्दों का इकट्ठा होना, या ऐसे फंक्शन में इकट्ठा होना जिसमें ख्यालात फासदा एक दूसरे के साथ ख्याल यानी कि पहुंच जाएं, यानी कि फहश मजाक और बोसो किनार की अक्सर लज्जत हासिल करने, जलक अगलामबाजी जो लड़के एक दूसरे के साथ बदफेली करते हैं, जुमा की ज्यादती, ये तमाम चीज़ें इसकी सबब होते हैं। और सबसे बदतरीन सबब यह है कि मुबाशरत जुमा के तसव्वुर और हिस्स में तेज़ी पैदा अपने आप को करना, ये इसके सबब हैं। और इसकी अलामात ये देख लें ज़रा तहम्मुल से कि काफ़ी इसकी अलामात जो हैं, अज़ाए रईसा तो शरीफा, दिल दिमाग जिगर खसिए मैदा गुर्दे मसाना, ये अज़ाए रईसा और शरीफा हैं। दिल दिमाग और जिगर, कुछ इतबा करा में ये 3 अज़ाए रईसा कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, उसमें खसिए शामिल है। रईस अक्सर आपने सुना होगा कि रईस कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो। तो हमारी तेब में अज़ाए रईसा जो इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो ये है, दिल दिमाग जिगर और खसिए। कुछ 3 कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं। बार आप 3 समझ लें या 4 समझ लें, चौथे को अज़ाए शरीफा में आप शामिल कर लें। इसी तरह मैदा गुर्दे मसाना, ये अज़ाए शरीफा हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं। तमाम बदन दुबला, चेहरा जर्द और बेरौनक हो जाता है। सर में दर्द भी रहता है, किसी को नहीं भी होता और किसी को रहता भी है। और कई लोग उनका सर भी चकराता है, कई लोगों का नहीं चकराता। इसके अलावा नज़र में फ़र्क आ जाता है, नज़र आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ख्यालात जो है वो मुंतशिर होते हैं। दिमाग पर गंदे ख्यालात, तबीयत जैसे बेचैनी सी, जैसे आदमी को जो है ना वो जैसे बुझा बुझा सा रहता है, जिसको हम तेब में जज मुर्दा कहते हैं, यानी कि खुशी तो दूरों दूर तक उनके नज़दीक नहीं आती। वहम वसवास, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उन लोगों को होती हैं। तरक्की ये बहुत इतनी हो जाती है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं, हत्ता कि वो दीवाने भी हो जाते हैं। इसके अलावा हाथों की हथेलियाँ और पाँव के तलवे, उसमें भी सेक निकलना, जलते हुए नजर आते हैं, जिसका ना पंजाबी में सेक निकलता है, पैरों में गर्मी निकलती है, आग की तरह वो तपते हैं। ये पिंडलियों में भी जैसे वो थकावट सी रहती है, सुस्त सुस्त आदमी रहता है, अक्सर कमर में दर्द रहता है, पीठ में चूंटियाँ जैसे चलती हैं, जैसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे चूंटियाँ चल रही हैं उसमें। इसके अलावा बिलाखिर कुव्वत इरादी, जो इंसान के अंदर विल पावर होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। हरारत गरीजी कम, दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, भूलने की बीमारी, दिल के धड़कने की, वो आदमी किसी के सामने अगर कोई उसने इंटरव्यू देना हो तो वो उससे पहले उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगर कोई गैर मुतवक्का उसको बात बताई जाए तो फिर उसकी अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। ये इसकी यानी कि अलामात हैं। अगर दिल की कमज़ोरी, अगर खफकान, कल्बे खफकान, दिल की धड़कन जो होती है। इसके अलावा मैदे की कमज़ोरी, जिगर की कमज़ोरी, गुर्दे की कमज़ोरी। और कई लोगों को, सबको तो नहीं, कई अक्सर ये केस ऐसे भी आते हैं कि उनको
फालिज की शिकायत भी हो जाती है, राशा की शिकायत भी हो जाती है, जैसे वो हाथ कांपते रहते हैं, उन लोगों को ये भी मसला हो जाता है। इसके अलावा तशन्नुज, खिंचाव जिस्म में, ये भी हो जाता है। वजल मुफासल, जोड़ों में दर्द, ये भी हो जाता है। इसके अलावा टीबी का मर्ज भी लग जाता है। सबको तो नहीं, किसी किसी को ये भी शिकायत हो जाती है। इसके अलावा अज़ाए तनासल जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, ढीलेपन हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। पेशाब की नाली का बैरूनी सुराख जो होता है, जिसको हम अहलील कहते हैं, वो मामूली हालत से भी हर वक्त ज़्यादातर सुर्ख रहता है। पेशाब की नाली में खाक किस्म की गदगदाहट होती है, जिसको दगदगा भी कहते हैं, और लज्जत भी महसूस होती है। हालात शहवत ज़रा से ख्याल आने से इंतशार में मुश्किल हो जाते हैं, और अज़ा अपना फेल कपड़े की रगड़ या किसी हसीन सूरत के तसव्वुर और ख्याल से नौज यानी कि वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा झूठी खेजश भी बार बार होती है। मनी, मजी और वदी, ये तीनों खारिज होती रहती है, और जिस्म जो है ना वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, हत्ता के मुस्तकिल तौर पर कमज़ोरी उसका मुकद्दर बन जाती है। मनी जो है वो पतली रहती है, सुरत इंजाल का उसको मसला रहता है, कसरत एहतलाम की शिकायत भी उन लोगों को हो जाती है, और अक्सर बिला दखूल ही अंजाल हो जाता है। इसके अलावा ऐसी हालत में भी खुद को नहीं कूद कर नहीं, ऐसी हालत में जो मनी है कूद कर नहीं निकलती, बल्कि मनी सफ़ेद, पतली और कम मकदार में खारिज होती है, और जुमा में कोई लज्जत भी हासिल नहीं होती। मरीज अगर जुमा का आदी हो, जिस दिन जुमा ना करे तो उसी दिन उनको इहतलाम भी हो जाता है। ये उसके अलामात हैं। मैंने आपको असबाब और अलामात और उसकी थोड़ी सी तारीफ जो ज़कात इसकी है वो तफसीर के साथ आपको बताई है। इंशाअल्लाह ताला अगली एक दो वीडियो में मैं इसका मुकम्मल तौर पर आपको जो तरीका इलाज है वो भी बताऊंगा, और इसमें कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती है वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सब कुछ। देखिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।